Last week, God spoke to me about being intolerant to sin. और पिछले सप्ताह प्रभु ने मुझसे बात किया कि पाप के प्रति कोई भी सहनशीलता ना हो, मतलब पाप को बिल्कुल भी मैं ना सहूं. You see, being intolerant, I mean, I cannot tolerate. You see, something we say that I cannot tolerate this. We say something, right? We have to come to the position that I cannot tolerate sin in my life. और इसका मतलब पाप को सहना नहीं है. हमारे जीवन में ऐसी कुछ चीजें जो हम कह सकते हैं इस चीज को तो मैं सह भी नहीं सकता. वैसे ही पाप के विषय में हमें एक ऐसे स्थान पर आना है जीवन में जहां हम ये कह पाए कि इस चीज को मैं बिल्कुल नहीं सह सकता. See, we know our Father who is in heaven and our Jesus, our Lord Jesus Christ, they are holy, pure, and there is no darkness in them. हम जानते हैं हमारा पिता जो स्वर्ग में है और प्रभु यीशु मसीह शुद्ध है, पवित्र है, उसमें कोई अंधकार नहीं है. And Jesus is only begotten Son of a God. और यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है. You see how God, our Father, he intolerant to sin कैसे परमेश्वर हमारा पिता पाप को नहीं सहता. to the extent that his own begotten Son, then he forsaken him on the cross. इस मात्रा में कि उसने अपने इकलौते बेटे को क्रूस पर त्याग दिया. When Jesus bore all our sin on the cross, when Jesus hung on the cross with the sin, then Father cannot tolerate that sin. Then he forsook his own begotten Son. That is the extent, that is how he is pure. जब यीशु मसीह उस क्रूस पर हमारे पापों को उसने अपने आप पर लेकर वो उस क्रूस पर टंगा था, तो पिता जो यीशु से प्रेम करता है पर उस पाप से घृणा करने की वजह से उसने यीशु मसीह को छोड़ दिया, त्याग दिया. इस मात्रा में वो पाप से उसको सह नहीं सकता, इतना वो पवित्र है. So turn with me 2 Corinthians chapter 5 verse 21. मेरे साथ निकालिए 2 कोरिन्थ उसका 5:21. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. 2 कोरिन्थ उसका 5:21. He made him who knew no sin to be sin on our behalf. जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया. See, Father made Jesus to become sin. पिता ने यीशु को हमारे लिए पाप ठहरा दिया कि वो पाप बन गया. For what? किस लिए? So that we might become the righteous of God in him. ताकि वहां लिखा है कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए. To save me from this world. इस संसार से मेरा उद्धार करने के लिए. So God the Father to make Jesus to become sin, and Jesus hang on the cross and he bore our sin. और परमेश्वर पिता ने क्रूस पर यीशु मसीह हमारे लिए मरा और हमारे पाप उसने अपने आप पर लिए. See, when we confess our sin and when we go to God and we repent truly, then our Jesus, he is faithful to accept us, to cleanse us with his precious blood. जब हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं, प्रभु के सामने जाते हैं, तो वो विश्वास योग्य है, धर्मी है हमें स्वीकार करने के लिए. And he clothes us with his righteousness. और वो हमें अपने धार्मिकता से ओढ़ता है. Then we have a confidence and we have a boldness to go to Father. तब हमारे अंदर एक हियाव, एक ढाढ़स आता है कि हम पिता के सामने जा पाए. And in the name of Jesus we can go to Father. यीशु के नाम से हम पिता के सामने जा सकते हैं. So when we go to Father, what will happen? We can find grace. जब हम पिता के पास जाएंगे तो क्या होगा? हमें अनुग्रह मिलेगा. And when we ask God, he will fill us with his Holy Spirit. और जब हम प्रभु से मांगेंगे तो वो हमें पवित्र आत्मा से भर देगा. And we also can come into the place that we also can become intolerant to sin. और हम भी उस स्थान तक आ पाएंगे जहां पाप को हम भी नहीं सहते. We cannot do on our own. हम ये चीजें अपने आप से नहीं कर सकते. Because there is nothing good in our flesh and I can do nothing. क्योंकि हमारे शरीर में कोई भली वस्तु वास नहीं करती, मैं कुछ नहीं कर सकता. So turn with me Hebrews chapter 4 verse 16. मेरे साथ निकालिए इब्रानियों 4:16. Hebrews chapter 4 verse 16. इब्रानियों की पत्री 4:16. Therefore let us draw near with confidence to the throne of grace. इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले. So that we may receive mercy and find grace to help in the time of need. कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे. You see, there is a two thing mentioned. We receive mercy and we can find grace. यहाँ दो चीजों का जिक्र है, हमें दया मिले और हमें अनुग्रह प्राप्त हो. When we go to God, God not
God not not see our sin, not see us as a sinful man. जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो परमेश्वर हमारे पाप को नहीं देखता या हमें पापी समझकर नहीं देखता। So when we go to God with a repentant heart, then God in His mercy, He forgave us and He cleanses with His precious blood. जब मन फिराव के हृदय के साथ हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो वो अपनी दया हम पर दिखाकर हमें शुद्ध करता है, हमें क्षमा करता है। So the mercy is for our past sin, what we have committed, knowingly or unknowingly. Then when we come to God, then God forgive us and cleanse us with His precious blood. That God's mercy. और दया जो है वो हमारे अतीत के पापों के लिए होता है। परमेश्वर हमारे पापों को देखकर हमें क्षमा करके शुद्ध करता है, उसके लिए हमें दया चाहिए। God expect only one thing from us. परमेश्वर हमसे एक ही बात की अपेक्षा रखता है, A true repentance. एक सच्चा मन फिराव। Then also that God not only forgive our past sin, और केवल प्रभु हमारे अतीत के पापों को ही क्षमा करता है ऐसा नहीं है, and He give us grace to the rest of the life to live a godly life. बचे हुए जीवन में एक ईश्वरीय जीवन जीने के लिए प्रभु हम पर अनुग्रह करता है। When the time of need. और वहां लिखा है अपने आवश्यकता के समय। What is the time of need? हमारी आवश्यकता के समय क्या है? When we tempted to sin. जब हम पाप करने के लिए प्रलोभित होते हैं। That is the time of need, right? If not, if I don't have a grace, I will fall in sin. वो हमारे आवश्यकता का समय है, क्योंकि अगर मेरे पास अनुग्रह ना हो तो मैं पाप में गिरूंगा। If I have grace, then I can able to overcome the sin. अगर मेरे अंदर अनुग्रह, अगर मुझ पर अनुग्रह हुआ तब मैं पाप पर विजय प्राप्त कर So that's पाऊंगा। a promise in the new covenant that if I am under grace, sin shall not have dominion over me. ये नई वाचा का एक वायदा है कि अगर मैं अनुग्रह के अधीन हूं तो पाप मुझ पर प्रभुता नहीं कर पाएगा। So when I go to God and ask God for forgiveness, then God in His mercy, He forgive all my past sin. Also, He give me His grace to live the rest of my life to pleasing to Him. और No, in the past, when we go to God, God give on His mercy, God give me mercy to forgive all my sin. और And अतीत- also He give me grace. और अतीत में जब मैं परमेश्वर के पास जाता था, मेरे पिछले पापों के लिए प्रभु मुझ पर दया करता है, पर भविष्य के लिए अनुग्रह भी देता है। To rest of my life to live to please Him. मेरा बचा हुआ जीवन में उसको प्रसन्न करने के लिए जीऊं, इसके लिए प्रभु मुझ पर अनुग्रह भी करता है। See, you know, in Jesus when He was on this earth, He was like you and me. He जब was ये- 100% man. जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था तो वो आपके और मेरी तरह 100% मनुष्य वो था। He was not lived on this earth as 100% God. और He पर- was 100% God, but He lived on this earth like a flesh. You and me have like a 100% man. जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया तो यहाँ परमेश्वर बनकर वो नहीं जिया। हाँ, वो 100% परमेश्वर था, पर जब इस पृथ्वी पर आया आपकी और मेरे तरह एक शरीर लेकर 100% मनुष्य बनकर वो जिया। And He tempted all points like you and me. How you and me tempting every day to do sin. Like same, Jesus was also tempted like you and me. और सब बातों में वो परखा गया। कैसे आप और मैं अलग अलग चीजों में परखे जाते, वैसे ही यीशु मसीह सब मामलों में, सब पापों में परखा गया, But He did not sin. पर उसने पाप नहीं किया, Because He hate the sin and He intolerant to sin. क्योंकि यीशु मसीह पाप से घृणा करता था और पाप को बिल्कुल भी नहीं सहता था। He cannot tolerate sin in His life. वो- That is, everybody you testify, right, to say about that. The life circle of Jesus, there is no dot of sin in Him. और यीशु मसीह अपने जीवन में पाप बिल्कुल भी नहीं सह पाता था। आप में से कितनों ने गवाही दी? यीशु मसीह के जीवन का वो सर्कल हमने देखा, सीमा देखी, जिसमें थोड़ा भी अंधकार या पाप का तिनका तक नहीं था। Turn with me Hebrew chapter 4 verse 15. मेरे साथ निकालिए इब्रानियों 4:15, Hebrew chapter 4 verse 15, the before verse. इसी के पहले वचन इब्रानियों 4:15। This high priest of ours understands our weakness, हमारा ये महायाजक हमारी निर्बलताओं को समझता है, for he faced all of the same testing like we do, yet he did not sin. क्योंकि वो हमारी तरह सब बातों में परखा गया पर वो निष्पाप निकला। You see, that's why we say Jesus is our forerunner. इसी वजह से हम कहते हैं कि यीशु हमारा अग्रदूत है। If Jesus was on this earth, He was only a God doing some miracles and He do healings,
then I cannot follow Jesus. अगर यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था, केवल परमेश्वर बनकर वो जिया और वो मनुष्य था ही नहीं, तब मैं यीशु का अनुसरण ही नहीं कर पाऊंगा। How Jesus said that you can follow me if you deny, if you want to follow me, deny yourself and take up cross, you follow me. How Jesus can say follow me? Because he was also like 100% man and he overcame sin. Then he say follow me. कैसे यीशु हमसे कह सकता है कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे, अगर कोई मेरा अनुसरण करे तो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले? अगर यीशु मसीह परमेश्वर के तौर पर यह कहे तो नहीं हो सकता, पर यीशु मसीह 100% मनुष्य था, मेरे तरह मनुष्य था, इसलिए पाप पर उसने विजय पाया, इसलिए वो मुझसे कह सकता है कि मैं अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो। How it was possible for Jesus, how it is not possible for me? अब कैसे यीशु के लिए संभव था पर मेरे लिए ये मुश्किल या मैं नहीं कर पाता? We are saying Jesus was 100% man, but how Jesus can able to overcome sin? But how come I am not able to overcome the sin? How every day I am tempting and sometimes I am falling? How? हम तो कहते हैं कि यीशु 100% मनुष्य था, पर यीशु ने पाप पर विजय पाया। मैं मनुष्य हूं, मैं हर दिन कोशिश करता हूं, पर मैं पाप में गिर जाता हूं। मैं पाप पर क्यों विजय नहीं प्राप्त कर पाता? If I do one thing, then I also can able to overcome sin like Jesus. अगर मैं एक चीज करूं तो यीशु ही की तरह मैं भी पाप पर विजय प्राप्त कर पाऊंगा। Turn with me Hebrew chapter 5 verse 7. मेरे साथ निकालिए इब्रानियों 5:7। Hebrew chapter 5 verse 7. इब्रानियों 5 उसका 7। While Jesus was here on earth. जब यीशु यहाँ इस पृथ्वी पर था। Right? While Jesus was on this earth like you and me. और हिंदी में लिखा है अपनी देह के रहने के दिनों में, मतलब जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आपकी और मेरे तरह मनुष्य था, उस समय की ये वचन बात कर रहा है। This is what Jesus has done. यीशु मसीह ये करता था। That's why he can able to overcome sin. इसी वजह से यीशु मसीह पाप पर विजय प्राप्त कर पाया। That's why he was tempted like all points like you and me, but he did not sin. इसी वजह से आपके और मेरी तरह हर बातों में वो परखा तो गया पर उसने पाप नहीं किया। That is how he become being intolerant to sin. और ऐसे ही ये कर कर पाप के प्रति बिल्कुल असहनशील यीशु मसीह हो गया। What he has done in his life? यीशु मसीह ने अपने जीवन में क्या किया? He offered praise and pleading with a loud cry and tears to the one who could rescue him from the death, which is a spiritual death. ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से मतलब आत्मिक मृत्यु से बचा सकता था, यीशु ने प्रार्थनाएं और विनती की। Every day he go to Father. Every day he go to Father and pray to him. Father, I am tempting. There is a whole day, every day morning, Jesus go to Father and pray. Father, this whole day I am going to tempt with so many things. And he prayed to Father, Father, please give me your grace. With tears and cry, loud cry, he prayed to Father. How much more we all need to pray like this? और प्रतिदिन भोर को यीशु मसीह पिता के सामने जाता था। हर दिन वो कहता था, प्रभु पिता, आज दिन भर कितने सारे प्रलोभन आएंगे, मैं इस पर अनुग्रह चाहता हूं, मैं ये पाप में नहीं गिरना चाहता। यीशु मसीह हर दिन रो रो कर, आंसू बहाकर विनती करता था। अगर यीशु ऐसी प्रार्थना हर दिन पिता से करता था, तो आपको और मेरे को कितनी ज्यादा आवश्यकता है कि हम ऐसी प्रार्थना करें। If I and you also pray like Jesus in everyday morning, go to Father and pray with a loud cry and tears, Jesus, please help me. The whole day I need to face so many temptations in my life. और Please help me. If we do like that, अगर आप और मैं भी हमारे जीवन में हर दिन सुबह पिता के सामने ये गुहार लगाए, पुकार कर, रो रो कर प्रार्थना करें, प्रभु आज दिन भर कितने प्रलोभनों का मैं सामना करने वाला हूं, कितने बार पाप से मैं परखे जाने वाला हूं। अगर हर दिन प्रभु से हम अनुग्रह मांगे कि प्रभु तू मेरी सहायता कर, अगर हम ऐसा करें तो he prayed to Father who could rescue us from death. तो उस वचन में लिखा है जो उसको मृत्यु से बचा सकता था। So that the death is when I commit sin, I become die. Spiritually I become die. अब यहाँ मृत्यु का मतलब है जब भी मैं पाप करता हूं तो आत्मिक तौर पर मैं मर जाता हूं। You see, when Jesus prayed and God heard his prayers because of his deep reverence for God. जब यीशु ने प्रार्थना की तो यहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने उसकी सुनी। उस वचन का अंतिम भाग भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। इंग्लिश में लिखा है परमेश्वर के लिए जो एक आदर भरा भय उसका था, डर जो उसका था, उसकी वजह से उसकी सुनी गई। Because the attitude of Jesus towards sin, zero. क्योंकि पाप के प्रति यीशु मसीह का रवैया यह था बिल्कुल शून्य, कोई पाप नहीं। That means there is no sin, there is
that's intolerant to sin. Jesus hates sin and he don't want to commit any sin. इसका मतलब पाप के प्रति बिल्कुल भी सहनशीलता नहीं। यीशु मसीह पाप से घृणा करता था और इसलिए बिल्कुल भी वो पाप नहीं करना And he चाहता don't था। want to displease his father. और यीशु किसी भी तरीके से अपने पिता को उसे नाखुश नहीं करना चाहता था, उसे दुखी नहीं करना You see, चाहता था। when Jesus took baptism, the voice from heaven, Father spoke to Jesus, "This is my beloved Son, Jesus Christ. I am well pleased in him." जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो स्वर्ग से एक वाणी आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अति प्रसन्न हूं। How Father well pleased with Jesus? How कैसे? is my Father pleased with him like Jesus? अब कैसे परमेश्वर पिता यीशु से अति प्रसन्न था? और दूसरा प्रश्न यह है, क्या मेरा स्वर्गीय पिता मुझसे प्रसन्न है क्या? If I also have the same attitude towards the sin, like zero tolerance, I cannot tolerate sin. अगर मेरे अंदर वही रवैया है जो यीशु का था पाप के प्रति, कि बिल्कुल शून्य सहनशीलता, मैं पाप को नहीं सह सकता, Not by my own strength or my try or with my on my own strength, but go to Father and ask God for help and grace with a loud cry and tears. Then God also will help me to overcome sin. मेरे अपने सामर्थ से, अपने यत्नों से नहीं, बल्कि परमेश्वर के पास जाकर मांगना, रोना, प्रभु मुझे सहायता कर, मुझे अनुग्रह दे, तब मैं पाप पर विजय प्राप्त कर पाऊंगा। For that, I have to put my body on the altar. अगर ऐसा मुझे करना है तो मुझे अपना शरीर उस वेदी पर रखना होगा। Not me, but Christ. मैं नहीं बल्कि मसीह। I put my eyes on the altar. मैं अपनी आंखें उस वेदी पर रखता हूं। I say no to see any lustful things. कोई भी लालसा भरी चीजें देखने से मैं इनकार कर देता हूं, नहीं कहता हूं। I put my mouth on the altar. मैं अपना मुंह उस वेदी पर रखता हूं। I'm not going to gossip. I'm not going to murmur. I'm not going to complain. I'm not going to backbite about anyone. I put my mouth on the altar. मैं चुगली No to sin. Say मैं- no to sin. मैं चुगली नहीं करूंगा, मैं शिकायत नहीं करूंगा, किसी की बुराई नहीं करूंगा, कुड़कुड़ाऊंगा नहीं। मैं अपने मुंह को उस वेदी पर रखकर कहता हूं, पाप के लिए नहीं। So like that, all the whole body, my ears, my tongue and my hand, everything put on the altar. I say no to sin. I do the will of Father in my life. ऐसे ही मेरा संपूर्ण शरीर, मेरे कान को, मेरे आंखों को, मेरे हाथों को मैं वेदी पर रखकर कहता हूं, पाप के लिए नहीं, और अपने जीवन भर में यही करता हूं। So the Roman 12:1 says, "Therefore I urge you, brother, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice acceptable to God, which is your spiritual service or worship." रोमियो 12:1 कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा, इंग्लिश में लिखा है, यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है। If I put myself on the altar, altar means what is a sacrifice. अगर मैं अपने आप को उस वेदी पर रख दूं, वेदी का मतलब बलिदान है, Then God help me also to become being intolerant to sin. तब परमेश्वर मेरी सहायता करता है कि पाप के प्रति मैं बिल्कुल भी असहनशील बन जाऊं। I mean, is my God changed my nature. It's not that I don't want to do sin. It's not that I have to conscious effort. God will change my nature to become intolerant to sin. इसके बाद परमेश्वर मेरे स्वभाव को बदल देगा। ये नहीं कि मैं कोशिश कर रहा हूं, नहीं पाप नहीं करना है, मैं मेहनत कर रहा हूं, नहीं पाप से दूर रहना, नहीं, प्रभु मेरे स्वभाव को बदल देगा कि उसके बाद मैं पाप को सहन ही नहीं कर पाऊंगा। Hebrew chapter 12 verse 3 and 4. इब्रानियों 12:3 और 4। Hebrew chapter 12 verse 3 and 4. इब्रानियों 12 उसका 3 और 4। You see, consider and meditate Jesus. और वहां लिखा है, Verse इसलिए 3. तीसरा वचन, उस पर ध्यान करो, मतलब यीशु मसीह पर ध्यान लगाओ। Okay, who endured from sinners such bitter hostility against himself. जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया। You see, consider and compare yourself with Jesus, that all the trials Jesus went through. अब यहां लिखा है कि यीशु पर ध्यान करो, मतलब ये देखो कि यीशु मसीह सारे कितने परीक्षाओं से गुजरा, इस पर ध्यान करो, So you will not grow weary and lose heart. ताकि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। The point, then we continue. You have not yet struggled to the point of shedding blood in your striving against sin. और चौथा वचन कहता है, तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो।
So what does it mean by you are not yet struggled to the point of shedding blood in your striving against sin? अब इसका क्या मतलब है कि पाप से लड़ते लड़ते तुम्हारी ऐसी मुठभेड़ नहीं हुई कि तुम्हारा लहू बहाओ? इसका क्या मतलब है? So this is what that is. If something is the point when I have to deny myself, then I don't do that. I stop it. इसका मतलब अगर कोई बात पाप की आती है, जब बात आती है पाप करने की, मैं इनकार करके मैं कहता हूं नहीं, यहीं मैं रुक जाऊंगा, पाप नहीं करूंगा। Shedding blood is what is dying myself. लहू बहाने का मतलब क्या है? अपने आप के प्रति मरना। So I'm not go to that place yet. Why you have not yet go to that place मतलब to the point that you dying yourself, you're shedding your blood against sin. और यहां लिखा है कि तुम उस स्तर तक नहीं गए हो। मतलब क्या? तुम वहां तक नहीं गए हो जहां अपना लहू बहाते हो, मतलब तुम अपने आप के प्रति मरते हो और पाप से बचते हो। But Jesus went that to the point that he denied himself and he shedding his blood, not physically in his whole life, but spiritually he denied his own will and he died. He shed his blood spiritually. Then he become overcome sin. पर यीशु मसीह इस स्तर तक गया, वो इस हद तक गया कि उसका लहू बहा, मतलब आत्मिक तौर पर उसका लहू बहा, मतलब आत्मिक तौर पर वो मरने के लिए तैयार था, इसलिए उसने पाप पर विजय पाया। आत्मिक तौर पर वो अपने आप के लिए मर गया। And here say that you are not yet come to the place, and Jesus all calls every one of us to come to the place, to shed our blood, to deny ourselves, to take up our cross to the point then we become too intolerant to sin. और यीशु मसीह उस स्तर तक गया, हम वहां तक नहीं गए। आज यीशु मसीह हमें बुलाता है, तुम भी आओ, उस स्तर तक आओ जहां तुम अपना लहू बहे और पाप के प्रति तुम असहनशील हो जाओ और पाप पर तुम विजय पाओगे। Just think about our past life. और हमारे अतीत के जीवन के बारे में सोच कर देखिए, In how many areas, how many times we tolerate sin and we grieved our Holy Spirit. कितने क्षेत्रों में, कितने बार हमने पाप को सह कर अपने पवित्र आत्मा को शोकित किया है। How many times we tolerated sin and grieved the Holy Spirit. कितने बार पाप को सहन करके हमने अपने पवित्र आत्मा को दुखी किया है। Repent from all the times we grieved the Holy Spirit by tolerating the sin. उन सारे चीजों से मन फिराए, वो सारे वाक्यों से जहां हमने पाप को सहकर पवित्र आत्मा को दुखी किया। May God help us. प्रभु हमारी सहायता करे।